Welcome back to Just Nursing Things. So we are starting with acute respiratory distress syndrome, and yeah, we are doing according with INC syllabus. So let's start. So ये acute respiratory distress जो एक serious lung condition होती है जिसमें fluid जो होता है वो leak हो जाता है alveoli of the lung में. अब now fluid leaks in the alveoli. अब जिसकी वजह से जो oxygen है वो blood में mix नहीं हो पाएगा और cause करेगा severe breathing difficulty and low oxygen levels. Now what can be the causes or etiology? We can say तो mainly ARDS usually develop from major illness or injury. We can say like pneumonia, severe pneumonia हो गया, sepsis हो गया means blood infection is there, chest injury और trauma हो गया, aspiration हो गया of vomit chemicals. Burn can also be the cause. So yeah, these all are the causes. Furthermore, we are having pancreatitis, near drowsing is there, blood transfusion reaction is there, COVID is there, or other severe viral infection. Now let's see pathophysiology. So mainly जब सीवियर इंजरी और इन्फेक्शन ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन को. अब इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लंग का ब्लड वेसल्स है वो लीकी हो जाएगा. नाउ फ्लूइड एंटर करेगा एल्वेलाई में एंड एयर से कोलैप्स हो जाएंगे और ब्लड से फिल हो जाएंगे. ऑक्सीजन अब पास नहीं, कैन नॉट पास प्रॉपर्ली इनटू द ब्लड. The body will develop severe hypoxia or we can say low oxygen. It will result in stiff lung and poor oxygen exchange. Now clinical manifestation sign or symptoms we can say इसमें severe shortness of breath, दिक्कत होगी breathing में, rapid breathing हो जाएगी, restlessness और anxiety होगी, low oxygen saturation will be there, cyanosis will be there means bluish skin and lips. Fast heart rate हो जाएगा, fatigue will be there, crackling sound in the lungs will be there, and yeah, confusion in severe cases because oxygen नहीं ठीक से पहुँच पा रहा है तो confusion will develop in the brain. So nursing management में we are having, we will monitor vital sign and oxygen saturation. पोजीशन करेंगे पेशेंट को इन सेमी फाउलर्स और प्रोन पोजीशन में, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, मेंटेन करेंगे एयरवे पेटेंसी को ताकि हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकें एंड ऑक्सीजन पैसेज क्लियर रहेगा. देन पेशेंट विल एबल टू टेक ब्रीथ प्रॉपर्ली. मॉनिटर करेंगे एबीजी रिपोर्ट्स को, प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन केयर इफ़ नीडेड, मेंटेन करेंगे फ्लूइड बैलेंस को, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन को एंड प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट. फ्रीक्वेंट रिपोजिशन टू प्रिवेंट प्रेशर सोर. मेडिकल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी विल बी गिवन, मैकेनिकल वेंटिलेशन विद लो टाइडल वॉल्यूम, प्रोन वेंटिलेशन थेरेपी विल गिवन, आईवी फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके, सेडेटिव्स देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज. एंड यहाँ सर्जिकल मैनेजमेंट नो डायरेक्ट सर्जरी इज नीडेड but there are some procedures that can be done like tracheostomy for long term ventilation and advanced life support in severe cases like ECMO can be given. तो यह कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर विल बी कैन बी सीन, लंग्स स्केवरिंग इज सीन मीन्स फाइब्रोसिस का डेवलपमेंट बिकॉज बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी इन दैट केस फाइब्रस टिश्यू विल बी फॉर्म. Secondary infection can be seen, organ failure, pneumothorax, muscle weakness, long ICU stay complication and death in severe cases. Now as I told you we are doing with INC syllabus, so our next topic is chest injury or we can say thoracic trauma. So chest injury is a trauma or a damage to the chest wall or lungs or heart or blood vessel caused by mainly accidents हो गया, violence हो गया या medical condition हो गया. ये interfere कर सकती है breathing के साथ और circulation के साथ और ये life threatening भी हो सकता है. So types में we are having, this is the PYQ of 2025. Now types में we are having chest injury can be divided into blunt chest injury. मेनली ब्लंट चेस्ट इंजरी कॉज होता है रोड एक्सीडेंट से, इसमें नो ओपन वाउंड होता है और एग्जांपल होगा जैसे रिब फ्रैक्चर हो गया या लंग कॉन्ट्यूजन इज सीन. पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी में कॉज बाय शार्प ऑब्जेक्ट या गन शॉट की, मतलब जो खुद देखिए वर्ड्स से पेनिट्रेट जो अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है लाइक शार्प ऑब्जेक्ट्स और गन शॉट्स वी कैन से, ये उसमें ओपन वाउंड प्रेजेंट होती है. कैन डैमेज लंग और हार्ट. ये कॉमन स्पेसिफिक इंजरी होता है रिब फ्रैक्चर लाइक हीमोथोरैक्स, फ्लेल चेस्ट, कार्डियक टैम्पोनेंट. इसे मेनली कार्डियक टॉम्पोनेंट में हमारा जो मतलब उसमें वाटर फिल हो जाता है, मेनली फ्लूइड फिल हो जाता है, मेनली वी कैन से वेंट्रिकुलर्स में, राइट वेंट्रिकुलर साइड में. पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन. इटियोलॉजी वी आर हैविंग फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से हो सकता है, असॉल्ट और वायलेंस की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट या गनशॉट और स्टैब वाउंड. पैथोफिजियोलॉजी तो ट्रॉमा डैमेज कर देता है चेस्ट के स्ट्रक्चर को जिसकी वजह से एयर ब्लड कलेक्ट हो जाता है चेस्ट कैविटी में. अब लंग एक्सपेंशन डिफिकल्ट हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज भी रिड्यूस हो जाता है, ब्रीथिंग इसकी वजह से लेबर्ड होने लगती है डिफिकल्ट. सिवियर इंजरी में अफेक्ट हार्ट फंक्शन, अगर ज़्यादा इंजरी है तो हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करता है. लीड टू हाइपोक्सिया एंड शॉक इफ अनट्रीटेड.
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली चेस्ट पेन होता है जो कि वर्स होता है ऑन ब्रीदिंग में, डिफिकल्टी ब्रीदिंग देखने को मिलती है, रैपिड ब्रीदिंग इज सीन, साइनोसिस इज सीन, दैट्स ब्लू स्किन देखते हैं, अनइक्वल चेस्ट मूवमेंट इज सीन, ब्रूइसिंग और स्वेलिंग वी कैन से इज सीन, कफिंग ब्लड इज सीन, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी इज सीन, वीक पल्सेस इन सिवियर केसेस। नाउ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में वी कैन से फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और वी कैन सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आर्ट्रियल ब्लड ग्लास एनालिसिस कैन बी डन, पल्स ऑक्सीमीट्री एंड ईसीजी। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग एबीसी करेंगे, असिस्ट करेंगे एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, पोजीशन करेंगे पेशेंट फॉर ईजियर ब्रीदिंग, पेन मैनेजमेंट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे चेस्ट मूवमेंट को। मेडिकल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी विल प्रोवाइड, एनालाइजस देंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन विल बी डन, आईवी फ्लूइड्स विल प्रोवाइडेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड अगर ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया हो, एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन इज देयर, मैकेनिकल वेंटिलेशन इन सीवियर केसेस। सर्जिकल मैनेजमेंट में मेनली थ्रोकोटॉमी करवाएंगे, चेस्ट सर्जरी जस्ट नोन एज, रिपेयर और लंग और वेसल इंजरी रिमूव करेंगे, क्लॉटेड ब्लड स्टेबलाइज करेंगे फॉर रिफ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेशन में वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर, pneumonia, shock, lung collapse, infection and cardiac complication and death if untreated. So yeah, that was all about, we have covered 2 topics, and if you found the lecture helpful, do like, share, subscribe the channel for more.